Good morning, everyone. Shri Mukul Kanetkar ji is All India Joint Organizing Secretary of Bharatiya Shikshan Mandal, the organization dedicated to evolve indigenous model of education. While still pursuing his LLB from Nagpur, he had already started to blossom into glorious orator and a brilliant writer at the university and national level. Since 1990, he dedicated his life for the work of Bharat Mata and society at large. He is inspiring the youth to understand the goal of their lives for the last 23 years. He has conducted innumerable workshops on subjects like personality development, life management, and research for national researchers for students and teachers of various prestigious universities and management institutes of the country, like IIT Delhi, Roorkee, JNU, Delhi University, MS University, Vadodara, etc. He trained and motivated 16,049 and 29,973 students to perform mass Surya Namaskar at Gwalior to create a world record duly entered in the Guinness World Records. For someone who has taken an oath to keep on going ahead in life, he was not satisfied with these achievements. When Sri Mukulji was given the responsibility of secretary in Vivekananda International Foundation from 2008 and 2011, he was engaged in in-depth study of issues related to national security. He was instrumental in networking politicians, lawmakers, bureaucrats, educationists for national good. Only man-making education can bring about change in the society. To present these thoughts of Swami Vivekananda in accordance with contemporary times, Mukulji devised a unique method of workshop called Pariksha De Haste Haste for students to take up examinations in a stress-free environment and wrote a book on the same topic. He has also written a book in Hindi on personality development titled Grahe Jeevan Apna Apna. Let's shape our life. He has conducted orientation program Shikshak Swadhyay for more than 14,000 school teachers to motivate them towards value-based teaching. Apart from 5 books in Hindi, he has published more than 1,500 articles in Hindi, English, and Marathi and has delivered more than 10,000 motivational lectures. He is constantly touring all over the country to organize a dedicated team to evolve a Bharat-centric educational system. I welcome you, sir. I know all of you need some time to grasp the first session, so we are going to have a break. But I just introduce him so that in the meantime, if you want to chat with him, he is available. I take this, please come. I take the opportunity also to welcome Shri Mangesh Kinre. Shri Mangesh is a very well-known chartered accountant of repute. He is the immediate past president of Western India Regional Council of Chartered Accountants, really an authority in taxation and various areas. So we are very honored to have you, sir. Okay, we'll take a break for 10 minutes. We'll resume at 10:13. Okay. बहनों और भाइयों नमस्कार। मुझे लगता है हिंदी सबको समझ में आती होगी तो मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करूंगा। आई विल मिक्स इट अप। जिनको अंग्रेजी सुनने की आदत है उनके लिए, उनको झटका नहीं लगे इसलिए। वैसे अभी बीच में एक कुलपतियों का सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर पे। देयर वर मोर देन 80 वाइस चांसलर्स देयर। और कुलपतियों के सम्मेलनों में बोलने के लिए भी कुलपति थे, सुनने वाले भी कुलपति थे। और शिक्षा व्यवस्था को कैसे बनाना, इसको लेकर के विषय था। पहले स्वामी विवेकानंद को लेकर के विषय हुआ, उनका शिक्षा और ये सारा विषय। और बाद में एक कुलपति सम्मेलन हुआ जिसमें विषय था कि रीस्ट्रक्चरिंग आवर यूनिवर्सिटीज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। और उसके लिए 50-60 विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर्स इकट्ठे आए थे एंड वी हैड अ सेमिनार।
पिछले 1.5-2 वर्षों से मैं एजुकेशन के फील्ड में मेरा दायित्व हुआ है, उसमें काम कर रहा हूँ भारतीय शिक्षण मंडल में, इसलिए इन लोगों से मिलने का आजकल ज़्यादा अवसर मिलता है, बुद्धिजीवियों से। तो उन वाइस चांसलर्स के कॉन्फ्रेंस में एक जबलपुर के वाइस चांसलर ने अपना भाषण शुरू किया हिंदी में, बाकी सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे। सामने बैठे हुए सब लोग हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझने वाले थे, फिर भी सब लोग अंग्रेजी में बोलते। जैसा गुरुमूर्ति जी ने कहा अभी कि हमने उसके साथ में एक स्टेटस, प्रेस्टीज ऐसा कुछ कुछ जोड़ दिया है, इसलिए अंग्रेजी में बोलना ऐसे रहता है। जबलपुर के एक वाइस चांसलर ने हिंदी में बोलना शुरू किया और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पहला ही वाक्य कहा कि मैं उस भाषा में बोलूंगा जिस भाषा में सपने देखता हूं। मैं हिंदी में ही बोलना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे बोलने का कारण अलग है, पर उनका ये बताना मुझे अच्छा लगा, इसलिए आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट एंड स्टार्ट विद दैट। शिक्षा व्यवस्था पर काम करते समय भी बहुत सारी बातें और बहुत सारे विषयों पर चर्चा और बहुत सारे विषय सामने आते हैं। जब से शिक्षा का दायित्व मिला और भारतीय शिक्षण मंडल इस प्रकार की संस्था का काम मिला जिसमें द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज डेवलपिंग एन इंडिजिनस मॉडल ऑफ एजुकेशन, भारत केंद्रित भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कोई एक प्रादर्श, एक मॉडल तैयार करना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं का भी अध्ययन शुरू कर दिया उस दिन से, और आजकल ये इंटरनेट के कारण बहुत आसान हो गया। तो इसलिए अब मैं 1.5 साल बाद कह सकता हूँ, रोज की लगभग 150 से 200 ईमेल्स पढ़नी पड़ती है और लगभग 2 घंटे में उसके ऊपर लगाता हूँ, और उसके बावजूद अभी 7-8 हज़ार मेरे इनबॉक्स में पड़ी होगी जो मुझे पढ़नी है, और मैं डिलीट नहीं करता बिना पढ़े, पढ़ करके ही डिलीट करता हूँ, और उसके लिए समय निकालता हूँ, प्रवास में निकालता हूँ, यात्रा में निकालता हूँ। इतने सारे अध्ययन के बाद मैं कह सकता हूँ कि सारी दुनिया परेशान है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के कारण, और सबको शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है। और मैंने विदेशों की शिक्षा व्यवस्था और खास करके पश्चिम की शिक्षा व्यवस्था को इसलिए मैंने अध्ययन करना शुरू किया, जानना शुरू किया, क्योंकि हमारे देश में हम लोगों को ये आदत पड़ गई है, जो कि अभी पहले सत्र में भी बात आई, कि हम नकलची हो गए, हमको नकल करने में मजा आता है। एक जो इसका जो ईमेलर भेजा है इस गेस्ट लेक्चर का, उसमें नीचे एक यूट्यूब के वीडियो का लिंक भेजा है आपको। तो वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं जिस सेशन में बोल रहा था, उस सेशन की अध्यक्षता कर रही थी सीबीएसई की डिप्टी डायरेक्टर। बाद में चाय पीते समय, गप्पे मारते समय मैंने उनको पूछा कि आपने सीबीएसई ने एक सीसीई नया कुछ एक तैयार किया है और वो नया एक पॉलिसी लागू कर दी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, लगातार सातत्य से होने वाला और समग्रता से होने वाला मूल्यांकन, ऐसा कुछ उसको बड़ा नाम दिया है। और उसमें करना क्या होता है, शिक्षक को अपने कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक बच्चे के ऊपर 50 पैरामीटर से 50 अलग अलग बातें हैं जिसके ऊपर उसको खानापूर्ति करनी होती है। उसका फॉर्मेट होता है 7 दिन में एक बार उसको आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, आपके क्लास के स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा, कम्युनिकेशन स्किल कितना बड़ा, भाषा को जानने का कितना बड़ा, ऐसे 50 मुद्दे उस शिक्षक को भरने होते हैं। और मैं जहां जाता था, शिक्षकों से बात करता था, सारे शिक्षक सीसी से परेशान हो गए थे, हमारा सारा समय इसी में जाता है, हम पढ़ाएंगे कब। और फिर राइट टू एजुकेशन ने कहा परीक्षा नहीं लेनी 8वीं तक, और परीक्षा लो तो भी धक्का दो, फेल नहीं करना किसी को। तो शिक्षक इन सारी बातों से बहुत परेशान है, और मैं शिक्षकों से जुड़ा हूं, रोज उनसे बात करता हूं। तो सीबीएसई के डायरेक्टर मिल गए, तो मैंने उनको पूछा ये सीसीई कहां से नकल की, दैट वाज माय क्वेश्चन। सीधे प्रश्न मैंने पूछा, ये कहां से नकल की, एंड शी वाज सो हैप्पी। वो कहते पहला व्यक्ति मुझे बोला हु हैज हिट द नेल ऑन इट्स हेड। मैंने कहा क्यों? बोले मैं हमारी मीटिंग में बार बार कहती हूं कि ये दूसरों की चीजें हमारे यहां लागू नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बताया, सीबीएसई की डिप्टी डायरेक्टर बता रही है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो बता रही है कि हमने बाहर से कंपनीज आती है, आजकल एजुकेशनल प्रमोशनल कंपनीज आ गई, अनेक कंपनीज है, मैं फिर कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा, मैं किसी का बदनामी नहीं करना चाहता। वो कंपनियां आकर के हमारे पॉलिसी मेकर्स को प्रेजेंटेशंस देती है कि यूरोप में ऐसा चल रहा है, अमेरिका में ऐसा चल रहा है, आप अपने स्कूलों में इसको लागू करो, एंड दे हैव टू सेल देयर सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट। वो बाद में होता है, लेकिन पहले वो बताते हैं। बोले सीबीएसई ने सॉफ्टवेयर तो नहीं खरीदा उनका सीसीई का, लेकिन उनका आइडिया खरीद लिया और उस आइडिया को लागू कर दिया। एक कंपनी ने, मार्केटिंग कंपनी ने, एजुकेशनल मार्केटिंग कंपनी ने बेचा हुआ आइडिया सीबीएसई ने पूरे भारत में लागू कर दिया।
वो कह रही है, डेप्यूटी डायरेक्टर सीबीएसई कह रही है कि मैं विरोध कर रही हूं कि दिस कैन नॉट वर्क इन इंडिया, भारत में ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं काम कर सकता? वो कहती है यूरोप का टीचर स्टूडेंट रेशियो 19:1 है, 19 बच्चों पे एक शिक्षक है। भारत में इट इज 63, 63 शिक्षक बच्चों पे एक शिक्षक है। 63 बच्चों पे जहां पर एक शिक्षक हो, वो ये 50 इसकी खानापूर्ति कहां से कर सकता है? 63 बच्चों के 50 पॉइंट, 19 बच्चों के लिखने लिख चलेगा, 63 बच्चों के नहीं लिख सके। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परिस्थिति के कारण बदलती है। लेकिन इस परिस्थिति के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात है, हम जो कुछ भी आज है, आज जो कुछ भी हम यहां पर बैठे हैं, व्यक्ति के स्तर पर हो या समूह के स्तर पर हो, वी आर प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशन। हम जो कुछ भी है, हमारी एक कंटिन्यूटी है, एक संतति है, एक सातत्य के सारे कारण हम बने। हमारा परिचय हम अपने माता पिता के नाम से देते हैं, और भारत में तो माता पिता नहीं, फिर गोत्र तक जाते हैं, पता नहीं कितने साल पुराना, कितने हजार वर्ष पुराने किसी ऋषि का परिचय देते हैं। मैं उस ट्रेडिशन के मेरिट डिमेरिट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट कि हम उसका प्रोडक्ट है। आज आईआईटी है तो आईआईटी की अपनी एक पहचान है, तो वो पहचान एक ट्रेडिशन से बनी हुई है। कुछ परंपराओं का पालन इतने वर्षों से होता रहा। अब मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो भी बड़ा मजेदार विषय है, नकलचियों का ही ये देश कैसे बन गया है, और स्वतंत्रता के बाद और मजेदार स्थितियां बनी। लेकिन अपना वो विषय नहीं है। अपना जो आज का विषय, उस विषय के लिए ये बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, जो आज विश्व में इसकी चर्चा शुरू हो गई है, और आज नहीं, मतलब पिछले 2 दशकों से वो लोग इसकी मार सहन कर रहे हैं, हर फील्ड में मार सहन कर रहे हैं। इसलिए एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और सोसाइटल लेवल पे गुरुमूर्ति जी बहुत विस्तार से आपको इन सारी बातों को बता रहे पिछले 5-6 सत्रों से। केवल इसी में नहीं, टेक्नोलॉजी में, साइंस में हम चाहकार हैं। सारे जीवन की तरफ देखने के दृष्टिकोण में, सफलता का दृष्टिकोण हमारे यहां भी बदल रहा है। हमारे यहां मतलब सारे विश्व का ही बदल रहा है। मेरे बचपन में आईआईटी की खबर अखबार में यदि मैं पढ़ता था, तो वो इस बात के लिए पढ़ता था कि कोई नई खोज आईआईटी के किसी स्टूडेंट ने की। फ्रंट पेज पे किसी आईआईटी का नाम तब आता था जब आईआईटी ने कुछ खोज की। अब फ्रंट पेज पे आईआईटी का नाम आता है कि कितने लाख का पैकेज मिला। दैट इज द चेंज। हमारा सफलता का मूल्यांकन करने का तरीका बदल गया। दुनिया में बदला है, विज्ञान में बदला, इकोनॉमिक्स में बदला, आर्थिक जीवन पे बदला, व्यक्तित्व विकास के सोच में बदला, सब में बदला है। सारी दुनिया में इसमें परिवर्तन आया है। बहुत दिनों से बहुत तरह के परिवर्तन आते गए। पहले यह सोचा गया कि गति ही प्रगति है, स्पीड, इसलिए स्पीड के ऊपर काम हुआ। सारे टेक्नोलॉजी में, साइंस में सारा जो काम हुआ वो स्पीड के लिए काम हुआ। सुपरसोनिक और क्या 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 मन की गति तक जाने का प्रयत्न वैज्ञानिकों ने किया, क्योंकि हमारे यहाँ माना गया कि सबसे जबरदस्त गति मन की गति है। हम हनुमान जी को मानते हैं कि वो मन की गति से आते जाते थे। यह हनुमान जी का माना गया कि वो द्रोणागिरी लेने गए तो आला गेला मनोगति, समर्थ रामदास ने कहा, मन की गति से गए और वापस आ गए। तो वो मन की गति तक जाने के लिए विज्ञान ने प्रयत्न किया। फिर उनको लगा नहीं गति से काम नहीं चलेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरा पैराडिम आया कि सफल क्या है, क्या अच्छा है। तो वहां पर विदेशों में शुरू हुआ, भारत में इतना आया नहीं। हमारे पास में जनसंख्या, आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी चीजें से हम बच जाते हैं। वहां पर जनसंख्या और स्थान का रेशियो कम है, इसलिए उन्होंने कहा बिग इज ब्यूटीफुल, इसलिए बड़ी बड़ी कारें। इसलिए आप अमेरिकन कार देखेंगे तो वो लीमो होती है, वो कितनी बड़ी होती है भगवान जाने, कैसे चलती होगी, उसके लिए कैसी सड़कें बनाई होगी। तो बड़ा यानी बहुत अच्छा। फिर एक आदमी के रहने के लिए बड़े बड़े घर, सब कुछ बड़ा 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 होना चाहिए। तो सारा रिसर्च, सारी टेक्नोलॉजी, सारा इकोनॉमिक, सारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बड़े के लिए हुआ। फिर कहा कि बड़े से नहीं काम चलेगा, तो फिर एग्जैक्टली अपोजिट, फिर नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, सूक्ष्मता। तो आप सूक्ष्मता में जाओ, सूक्ष्मता में जाओ, सूक्ष्मता में जाओ, सूक्ष्मता में जाते जाते कहां हो गया, कहां जाकर के पहुंचे कि हम पार्टिकल, पार्टिकल्स के पार्टिकल, पार्टिकल्स के पार्टिकल, कणों के कणों के कणों का अध्ययन करो। और फिर वो हम लोग जानते हैं अभी जो हुआ हिग्स बोसोन को लेकर के, गॉड डैम पार्टिकल को गॉड पार्टिकल बना दिया हमने।
वो लेखक ने लिखा गॉड डैम पार्टिकल और हमने उसको गॉड पार्टिकल नाम दे दिया। डैम छाप नहीं सकते थे अखबार में, गाली थी इसलिए उन्होंने डैम हटा दिया। उसका भगवान से कोई लेना नहीं देना नहीं, भगवान की थ्योरी से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आम आदमी जिसने उसको, मैंने तो केवल अपनी अपनी रुचि की खातिर सर्न की वेबसाइट पे जाकर के खोज की कि ये हुआ क्या है, ये हिग्स बोसन की खोज हुई यानी हुआ क्या। इसलिए मैंने सर्न की वेबसाइट पे उसके बारे में जानकारी की और 8-10 उसके पेपर पढ़े टेक्नोलॉजिकल। मेरा दिमाग चकरा गया, मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है इसलिए भी चकरा गया हो सकता है। आप लोगों में से जो टेक्निकल या साइंटिफिक बैकग्राउंड के वो शायद समझ पाए उसको अच्छी तरह से, लेकिन पूरा समझने के बाद मेरे को एक बात अच्छे से पता चली कि कुछ नहीं मिला है। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग, जो वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं वो बता रहे कि कुछ नहीं मिला है अभी। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सूक्ष्म प्रगति, गति, गति से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। आज सारा जमाना नैनो टेक्नोलॉजी का। आईआईटी दिल्ली के अंदर जब हम वर्कशॉप ले रहे थे तो आईआईटी दिल्ली में नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले प्रोफेसर जगदीश कुमार के साथ अच्छा व्यक्तिगत संबंध और संपर्क मेरा बना, हमारे साथ वो जुड़े हुए रहे। मैंने उनसे समझा कि मैंने कहा ये है क्या नैनो टेक्नोलॉजी, जरा समझाओ तो। और एक टीचर को इससे ज्यादा मजा क्या आएगा, उनके क्लास, उनके ऑफिस में बैठे थे और उनके ऑफिस में छोटा सा ऑफिस 12x10 का ऑफिस, और उस ऑफिस के अंदर पीछे ऐसे ही ब्लैक बोर्ड लगा रखा है उन्होंने। आज गुरुमूर्ति जी को देख करके मुझे वही आनंद आ रहा था, ही इज बेसिकली ए टीचर, गलती से सीए बन गए। सो ही वाज एट हिज बेस्ट जब ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे। मैं पिछले कई वर्षों से गुरुमूर्ति जी के साथ में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और करीब से उनको जानता हूं, तो इसलिए आज गुरुमूर्ति जी को देख करके मेरे को बड़ा मजा आया कि दिस इज व्हाट ही रियली इज। वैसे प्रोफेसर जगदीश कुमार को बड़ा मजा आया, उन्होंने तुरंत चौक और डस्टर लिया और मेरे को आधे घंटे तक, उनको ध्यान भी नहीं मेरे को समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने मेरे को वो समझाने की कोशिश की। दुनिया का सोच, सफलता के तरफ देखने की सोच बदल रही है। और पिछले 20 वर्षों में इस सब में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, गति में, बड़े में, फिर उस बड़े के अंदर ये कंजम्पशन वगैरह सारा वो बड़े बड़े के चक्कर में ही हुआ। और सबको देख करके, चाहे कॉमर्स हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सारे विश्व को जिस ढंग से हम चला रहे हैं, या पॉलिटिक्स हो, उस सारे चलाने के अंदर जो एक केंद्रितता, जो एक सेंट्रलाइजेशन आ गया कि हम जो कहते हैं वैसा सबको करना चाहिए और सब लोग हमारे जैसा करेंगे तभी वो ठीक होगा, इस बात को लेकर के जो सारा काम हुआ, उसके दुष्परिणाम दुनिया को समझ में आने लगे। जैसा अभी इकोनॉमिक्स में बताया उन्होंने कि एक मॉडल सब जगह फिट नहीं हो सकता, यही बात उनको हर जगह पर पता चली। टेक्नोलॉजी भी एक ही टेक्नोलॉजी सब जगह पर नहीं लग सकती, इसलिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाना शुरू हो गया। फिर उसमें भी डाइवर्सिटी, जैसे बायोडाइवर्सिटी है वैसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में भी नॉलेज डाइवर्सिटी की बात की जाने लगी। दुनिया इस पर विचार करने लगी कि हम विकास की ओर जा रहे हैं कि विनाश की ओर जा रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो बना, वो सबसे बड़ा कारण, दो चीजें विश्व के सामने एक ऐसी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है कि जिसका उत्तर अभी तो नहीं मिल रहा दुनिया को। एक चुनौती है पर्यावरण की चुनौती। एनवायरमेंटल क्राइसिस हैज कम टू सच ए प्रोपोर्शन, इस स्थिति में पहुंच गया कि इट हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मानव जाति, ये पूरी पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी, यहां तक जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट है वो यहां तक बात कर रहे हैं कि कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलता, क्योंकि उनके पास में उसके लिए प्रमाण है। 192 करोड़ वर्षों में जितनी स्पेसीज खत्म हुई, उसके बराबर की स्पेसीज 500 साल में खत्म हुई पिछले। सो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज वो जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके कारण दुनिया में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। हमने सारे के सारे तंत्र को, तंत्रज्ञान को, सारी टेक्नोलॉजी को, सारे विज्ञान को, सारे विकास को, सारे व्यापार को, सारी बातों को, सारी जीवन शैली को, दिस ऑल टुगेदर कैन बी टर्न्ड इनटू वन वर्ड, लाइफस्टाइल। इस सबको ऐसा बना दिया कि जिसके द्वारा हम विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं, ये प्रश्न मानवता के सामने आया। इसलिए जब मिलेनियम चेंज की बात हो रही थी, जिस समय 2000 में सहस्त्राब्दी के परिवर्तन की बात हो रही थी, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह था आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इसलिए दोहा में और अभी कुछ महीने पूर्व बाली के अंदर सारी दुनिया इकट्ठी आकर के प्रश्न पूछ रही है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। पृथ्वी सम्मेलन लिया,
सन 2000 के पहले 1999 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और उस पृथ्वी सम्मेलन में चर्चा हुई कि पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी। और दोहा के उस पृथ्वी सम्मेलन का जो थीम था, उस कॉन्फ्रेंस का जो वाक्य था, वो थीम वाक्य था, वो सारे पृथ्वी के बचाने के लिए लोग आए हैं, तो उन्होंने वाक्य दिया है, अर्थ इज आवर मदर, वी आर हर चिल्ड्रन। ये वेद मंत्र का वाक्य, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याम। उनको नहीं पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने वेदों से चोरी किया। दुनिया की कोई भी मनीषा सत्य का विचार करेगी तो एक ही जगह पहुंचेगी। आपको जब न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाया गया था 5वीं 6वीं 7वीं, जब भी सिलेबस में होगा, आजकल तो मुझे लगता है 3री 4थी में डाल दिया होगा, हमारे समय सौभाग्य से 6ठी में था। मैं देखता हूं आजकल के बच्चों को, बेचारे क्या क्या पढ़ना पड़ता है उनको। 3री के 4थी के बच्चे क्या क्या रट रहे होते हैं। आई एम सो सरप्राइज। मेरे भाई की बेटी वो 3री या 4थी में है। परसों में जब गया तो वो कुछ रट रही थी, मैंने कहा क्या रट रही है, तो बोले हमारे यहाँ एक चैप्टर है उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। इंग्लिश मीडियम में बेचारी पढ़ रही थी, तो वो पढ़ते समय वो पढ़ रही थी वायरस मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेस। मैंने कहा वायरस कहां से नेचुरल रिसोर्स हुआ? तो मैंने उसको कहा जरा देना तेरी कॉपी। जब कॉपी हाथ में ली तो वो वेरियस था। उसके टीचर की गलती थी, उसकी मुझे पता नहीं, मैं उस चक्कर में पढ़ा नहीं। टीचर के प्रति असम्मान हो जाता है, इसलिए मैं टीचर के प्रति पढ़ा नहीं। मैंने कहा इसकी अंग्रेजी ठीक करने की जरूरत नहीं। पर वो 3री के बच्चे को आप ये रटा रहे हो, वेरियस मिनरल्स दैट आर फाउंड इन द अर्थ आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह वगैरह वगैरह। क्या था पता नहीं। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? उसको शब्द का अर्थ पता है, वो वायरस बोल रही है लेकिन उसको अर्थ पता है। उसने कहा अलग अलग। मैंने कहा अरे वाह, तेरे को अर्थ तो पता है, फिर शब्द क्यों नहीं पता? फिर मैंने उसकी माँ को कहा कि जरा ध्यान दो इसकी तरफ, तो माँ कहती है मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, उसको मराठी मीडियम की स्कूल में डाल दो, झंझट मिट जाएगा। कम से कम बच्ची का ये माथा पच्ची तो खत्म हो जाएगी। बेचारी अपने आप से कुश्ती लड़ रही है। एनीवे, मैं क्या अभी शिक्षा का काम कर रहा हूं तो बार बार उस पे आ जाता हूं मैं, उस विषय पे, शिक्षा के विषय पे, क्योंकि मेरा बेसिक काम अभी वो चल रहा है। इसलिए तो सारी दुनिया के सामने ये प्रश्न है। दोहा में इस प्रश्न पर विचार किया गया, अभी बाली में विचार किया गया। कार्बन फुटप्रिंट्स की बात होने लगी है। आपको अपने देश का बताना पड़ेगा कि आप कितना कार्बन एमिशन करते हो। आज यहां तक बात आ गई कि आप अपनी किसी भी एक्टिविटी का कार्बन सिग्नेचर क्या है इसके बारे में बात करो, क्योंकि दुनिया को लगने लगा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और फिर जैसा होता है कि बैंडेड थेरेपी शुरू हो गई, सब जगह पर बैंडेड लगाने शुरू कर दिए। हमने कहा कि एमिशन को रोको, इसको रोको, फिर उसके लिए फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को रोको, फिर ये करो। बहुत सारे पैचवर्क के काम किए गए, पैचवर्क के काम से काम जमा नहीं। अब क्या किया जाएगा? यह स्थिति हर चीज में थी। मेडिकल के फील्ड में एक थियरी डेवलप हुई अमेरिका के अंदर। ये जो सारा का सारा सिद्धांत है ना कि जियो मस्ती करो, जियो और मस्ती करो, वो जो चार्वाक का सिद्धांत है, वो सिद्धांत आज हम सबके जीवन का सिद्धांत बन गया। हम कहते हैं ये जो जीवन सामने दिख रहा है उसको जियो ना, एंजॉय करो, ईट ड्रिंक, बी हैप्पी, मस्ती करो, ये लाइफस्टाइल बन गई। और फिर बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर ने कहा क्या को चिंता करते हो, बीमार पड़ जाओगे तो हमारे पास आओ, हम तुमको दवाई देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। सो दिस पिल थेरेपी हर घर के अंदर, यूरोप और अमेरिका के हर घर के अंदर मेडिसिन कैबिनेट इतना बड़ा, उसका आकार बड़ा होता गया। पहले वॉश बेसिन के ऊपर छोटा सा हुआ करता था, बेडरूम में बड़ा उनको रखना पड़ता है। इतनी सारी प्रिस्क्रिप्शन की बॉटल्स अंदर। मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा आज से 14 साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट में एक लेख आया था जो कहता था कि एवरेज अमेरिकन को जो स्लीपिंग पिल का इंटेक है, जो उनको नींद की गोली खानी पड़ती है, वह पर अमेरिकन उसका एवरेज आता है 18 पिल्स। 18 गोली खाए बिना अमेरिकन को नींद नहीं लगती। ये रीडर्स डाइजेस्ट ने 14 साल पहले कहा था। अब हो सकता है वो एवरेज और बढ़ गया हो, विकास हो गया ना, और ज्यादा विकास, रिसेशन से हो सकता है कम हो गया हो, मुझे पता नहीं। वो कहता है अमेरिका एक दिन में जितनी दिन की गोलियां खाता है सारी दुनिया 6 महीने सो सकती है। ये रीडर्स डाइजेस्ट लिखता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, भारत में कहीं भी सो सकते हैं, लेक्चर में सो जाते हैं।
बस में बैठे बैठे नहीं, जनरल बोगी में खड़े खड़े लोगों को सोते हुए देखा है मैंने। हाथ टंगा हुआ, लोकल में आपने भी देखा होगा, खड़े खड़े सो जाते। कितने सुखी देश के लोग हैं। वहां लोगों को 18 गोलियां खाकर के नींद नहीं आती। हुआ क्या, डीन ऑर्निश नाम का एक हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आया, जो कार्डियोलॉजिस्ट प्रेसिडेंट का कार्डियोलॉजिस्ट था। उस कार्डियोलॉजिस्ट ने था, दिस वोंट वर्क, दिस पिल थेरेपी वोंट वर्क। और उस डीन ऑर्निश ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था चेंज ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन थ्योरी। उसने कहा जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर लीवर, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज, यू विल हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। वी कैनॉट गारंटी कीप योर लाइफस्टाइल एंड वील टेक केयर ऑफ बॉडी। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एलोपैथी ने पहली बार माना कि मन कुछ होता है और मन का परिणाम शरीर के ऊपर होता है। मैं सारे विश्व का जो भविष्योन्मुखी चिंतन है उसकी बात कर रहा हूं। आने वाले समय में काम किस पे करना चाहिए, आने वाले समय में हमको काम करना पड़ेगा। क्या जीवन जीने का कोई ऐसा तरीका है जिसमें शाश्वत विकास हो, समग्र विकास हो, परमानेंट हो। सस्टेनेबल के 2-3 डायमेंशन जो आज विश्व में चिंता में चल रहे, फिर वो बैंडेड थेरेपी में बहुत विचित्र बातें होती है, लेकिन फिर भी कुछ जो चिंतन विश्व में चल रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा। फिर हम अपने चिंतन पर, जिसकी मैं बात करना चाहता हूं यहां पर, जिसकी बात करने के लिए मैं आया हूं, भारतीय चिंतन इसका जवाब दे सकता है। और पर फिर हम केवल पुराणों की और वेदों की और उपनिषदों की बातें करके नहीं चलेगा। वी हैव टू अप्लाई इट टुडे, क्योंकि उसके बिना ज्ञान नहीं होता है। 5वीं 6वीं में जब गुरुत्वाकर्षण का नियम मुझे पढ़ाया गया, उसी समय मैंने कैसे पढ़ा था मुझे याद है। आपको कैसे पढ़ा मुझे याद नहीं, आपने कैसे पढ़ा, लेकिन आपको याद होगा। शायद मैं अपनी घटना बताऊं तो आपको वो याद आ जाएगी। न्यूटन के नियम को जब मेरे को सिखाया गया तो शिक्षक बड़ा मजेदार तरीके से सिखाते हैं कि पेड़ के नीचे बैठा था और सेब गिरा। टीचर इंटरेस्टिंग होता है तो सेब न्यूटन के सिर पे गिरता है, थोड़ा बोरिंग टीचर हो तो सामने गिरता है। इतना सही फर्क है, सेब गिरता है नीचे और सेब गिरता है और न्यूटन देखता है ऊपर। सेब नीचे गिरता है, न्यूटन ऊपर देखता है और सोचता है वाई। और वाई के सोचने से उसको नियम पता चलता है कि ये पृथ्वी खींच रही है और उसको कहा गुरुत्वाकर्षण है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का, और उसका फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन ये घटना सबको याद है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद आपने क्या किया था ये याद है क्या? मुझे याद है, मेरे को सामने वाले बेंच पे बैठाया करते थे टीचर लोग, क्योंकि बहुत शैतान था मैं। पीछे बैठता था तो बहुत शैतानी करता था, इसलिए मेरे को सामने बैठाते थे। नहीं तो हमारे यहाँ ABCD से बैठने की व्यवस्था थी तो मुकुल से भी नहीं आता और कानिटकर से भी सामने नहीं आ सकता था, लेकिन मेरे को जबरदस्ती सामने बैठाते थे। शैतानी करेगा करके। बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत जबरदस्त टीचर, मैं उनको नहीं भूल सकता। 6ठी को कितने साल हो गए मेरे, लेकिन मेरे को आज भी याद है वो टीचर। उन्होंने जैसे ये घटना बताई और ये सिखाया, मुझे आज भी याद है। मेरे हाथ में वो इरेजर था, रबड़, और मैंने उस रबड़ को ऊपर फेंका और कैच किया, एंड देन आई सर्टिफाइड, ओह न्यूटन वाज करेक्ट। I did not accept gravitation because Bakshi sir told me. I did not accept gravitation because Newton told me. और आगे चल करके मैंने जब अपने शास्त्रों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला 2000 साल पहले भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व में लिख के रखा है। भारद्वाज मुनि ने यंत्र सर्वस्व नामक का ग्रंथ लिखा, जिसका वैमानिकी प्रकरण अभी भी उपलब्ध है, मेरे पेनड्राइव में भी है, और उसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, उस गुरुत्वाकर्षण से कैसे ऊपर जाना ये भी लिखा है। प्रश्न ये नहीं कि पाराशर से न्यूटन ने सीखा कि नहीं, क्योंकि न्यूटन से जब मैंने ही नहीं सीखा तो भारद्वाज से कहां से न्यूटन सीखेगा। सीखना तो हमको खुद को ही पड़ता है। नॉलेज इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। प्रत्येक की अपनी घटित होती है, उस समूह की घटित होती है, उस समूह की अपनी ये बात होती है, और इसको समझे बिना सस्टेनेबिलिटी पर विचार नहीं कर सकते। इसलिए सस्टेनेबिलिटी पर विचार करते समय इस महत्वपूर्ण बात को हमको समझना पड़ेगा, अपने कुछ मिथक तोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में, जैसे एक मॉडर्न शब्द है आजकल, मॉडर्न शब्द। मॉडर्न का अर्थ क्या है? मॉडर्न शब्द का सिंपल अर्थ है विच इज मोर रिसेंट, समय में अभी का है, इसलिए वो मॉडर्न है। सिंपल।
हिंदी में आधुनिक कहते हैं, संस्कृत के अधुना शब्द से आया है, अधुना से आधुनिक बना, अधुना में इक प्रत्यय लगने से आधुनिक बना, अधुना इक आधुनिक। आधुनिक मतलब क्या? समय के काल में कोई चीज पुरानी थी, कोई चीज नई है, इतना सा मॉडर्न का अर्थ है। लेकिन मेरी वेशभूषा को आप मॉडर्न कह सकते हैं क्या? लेकिन मैं गारंटी से बताता हूं, आपके पैंट के बाद में इस धोती को खरीदा गया है, आधुनिक है, अधुना है। टाइम सेंस में ये धोती इज मोर रिसेंट देन मेनी ऑफ योर जीन्स। आपकी बोरियों से ये आधुनिक है, लेकिन आप नहीं मानेंगे इस बात को। मानेंगे क्या? क्योंकि आपने आधुनिक शब्द का अर्थ बदल दिया। हमारे मिसकंसेप्शंस कितने जबरदस्त है। मॉडर्न इज ओनली टाइम सेंसिटिव वर्ड, बट वी हैव मेड इट कल्चर सेंसिटिव वर्ड। सो वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन, ये बाहर के बातों में। और टेक्नोलॉजी के मामले में क्या? मॉडर्नाइजेशन मतलब व्हाट इज मॉडर्न दैट इज एडवांस। आपका मोबाइल मेरे मोबाइल से मॉडर्न है मतलब वो एडवांस है, ऐसा हम मान के चलते। इसलिए एवरीथिंग दैट इज मॉडर्न इज एडवांस, एवरीथिंग दैट इज एंशिएंट इज समथिंग गड़बड़, ओल्ड। ये जो टाइम सेंस का एक लीनियर कंसेप्ट आया, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने स्टीफन हॉकिंस की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ी है। उसमें वो ये बात को बहुत साइंटिफिकली समझाते हैं। बेसिकली द होल वेस्टर्न पैराडिम, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लिविंग इज बेस्ड ऑन दिस लीनियर कंसेप्ट ऑफ टाइम, भूत वर्तमान भविष्य। एक रेखा में, एक लीनियर वे में टाइम जा रहा है, और यदि लीनियर वे में होगा तो जो पुराना है वो खराब होगा, जो नया है वो अच्छा होगा। मॉडर्न विल बी एडवांस इफ टाइम इज लीनियर। फिजिक्स कहता नहीं है टाइम लीनियर। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो कहता है कि लीनियर टाइम से हम फिजिक्स के, एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत सारी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे, ब्लैक होल की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे, सुपरनोवा की समस्याओं को नहीं समझा पा रहे। इतना ही नहीं, सूक्ष्म स्तर पे भी नहीं समझा पा रहे। हेजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जिसमें वो कहता है कि एक कण को जब मैं देखता हूं तब उस कण की स्थिति बताऊं तो गति नहीं बता सकता, गति बताऊं तो स्थिति नहीं बता सकता। ये सिंपल आइंस्टाइन की थ्योरी से डिपार्चर था। क्लासिकल मैकेनिक्स में आइंस्टाइन कहता है कि थ्योरी रिलेटिव है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी एक वस्तु का स्थान आप बता दो और किस गति से मूव कर रही है बता दो, तो उसका स्थान मैं बता दूंगा कि 2 मिनट बाद वो कहां रहेगी। दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पार्टिकल्स को देखते समय उनको पता चला कि नहीं, स्थिति बताओ तो गति नहीं बता सकते, गति बताओ तो स्थिति नहीं बता सकते। उसको हेजनबर्ग ने कहा कि इट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सारा क्वांटम फिजिक्स उससे डेवलप हुआ, सारी आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी और वो सब कुछ उससे डेवलप हुआ। लेकिन वो प्रिंसिपल का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमको पता नहीं हो क्या रहा है। फिर उसके आगे अनेक थ्योरीज आई। मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा टेक्निकल बातों से, मैं उसका विषय, मेरा विषय भी नहीं वो, इसलिए मैं उन विषयों पर बहुत ज्यादा नहीं, केवल मेरी जानकारी के लिए जितना जाना है उतना बता रहा हूं। लेकिन ये विषय क्या हो गया, मैं आपके सामने जो विषय रख रहा हूं वो विषय रख रहा हूं एंशिएंट कैन बी एडवांस, बिकॉज टाइम इज नॉट लीनियर। बेसिकली टाइम इज साइक्लिक। दिस इज व्हाट फिजिक्स इज कमिंग टू। उन्होंने साइक्लिक से भी आगे का शब्द प्रयोग किया। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिंस लिखता है कि टाइम इज स्फीयरिकल। Unless you consider time spherical, you cannot solve these paradoxes of science. हम इस देश में सदियों से समय को काल चक्र ही कहते हैं। हमारे समय को काल चक्र ही कहा, इसलिए हमारे यहां का जो बीता हुआ समय फिर वापस आएगा। इसलिए एंशिएंट को कभी हमने रिजेक्ट नहीं किया। मुझे पता नहीं गुरुमूर्ति जी ने बताया कि नहीं, लेकिन गुरुमूर्ति जी का वो प्रिय विषय अभी तक नहीं बताया होगा तो आगे आएगा। जब सन 2000 में ये पर्यावरण आदि की बातें चल रही थी, उस समय इकोनॉमिक चिंतन भी चल रहा था। तो विश्व के प्रगत देशों ने मिलकर के एंगस मेडिसन को काम दिया कि दुनिया का आर्थिक इतिहास लिखो। ओईसीडी कंट्रीज का जो ग्रुप है, उन ओईसीडी ने यह काम दिया एंगस मेडिसन नाम के एक इकोनॉमिस्ट को, जिसकी अभी 2006 में मृत्यु हुई। 99 से 2000 तक उन्होंने उसके बारे में चिंतन किया और उसके बारे में पूरी स्टडी की, और पूरी स्टडी करके और उन्होंने सारे दुनिया के जीडीपी का एक चार्ट दुनिया के सामने रखा, और दुनिया हिल गई कि ऐसा था क्या, उनको पता ही नहीं था। हम लोगों को आज भी नहीं पता है। पॉल बेरॉक नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने वो बात लिखी थी, और उसको देख करके ओईसीडी ने एंगस मेडिसन को काम दिया। मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए वो चार्ट यहां पर आपके सामने रखा है।
ईसा मसीह के प्रारंभ से, मतलब ईस्वी सन 0 से लेकर 2008 तक का पूरा डाटा इसके अंदर उन्होंने एक चार्ट में दे दिया कि कैसे कैसे चाइना, भारत और इनका क्या क्या होता रहा और कैसे वो आगे बढ़ा। केवल हम लोगों के दिमाग में ये जो बात है कि प्राचीन है वो सारा टाका हुआ है, प्राचीन है वो सारा गड़बड़ है और आधुनिक है वही ठीक है, केवल उसको एक चिंतन के लिए, चर्चा के लिए, विषय देने के लिए मैंने ये बात यहां पर रखी। मुझे इसका इकोनॉमिक्स नहीं डिस्कस करना है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि एक ऐसा व्यापार का मॉडल इस देश ने डेवलप किया था जिसने सारी दुनिया में एक जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट मोर देन 33%। और आप देखेंगे तो बिल्कुल 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत की वो स्थिति है। और जब से अंग्रेजों ने इस देश में सारा पैराडिम शिफ्ट किया और हमारा जो व्यापार था उस व्यापार की कमर तोड़ी, हमारा व्यापार, हमारा पूरा अर्थशास्त्र धर्माधारित था। मैं उस बात पर आने वाला हूं, वो मेरा मुख्य विषय है आज का। उस व्यापार को तोड़ा, उसके बाद में गति धीरे धीरे होती गई और आज भारत कहां पर पहुंच गया देख लीजिए, ढूंढना पड़ता है कहां पर है। ये 20 के पास में लिखा हुआ है, छोटा सा नीचे में। चाइना बड़ा हो गया, भारत का इतना सा कंट्रीब्यूशन रहा सारे दुनिया के जीडीपी के अंदर, हमारा व्यापार कमजोर हो गया। मैंने क्यों धर्माधारित ये शब्द का प्रयोग किया? क्योंकि वो व्यापार वैसा ही था। सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह आज दिखाई देते हैं, केवल फारिस्ट में नहीं, फारिस्ट में तो दिखते ही है। अभी कुछ साल पहले रह गया, नहीं तो वो फोटो भी मैं आपको दिखा सकता था। अभी पिछले साल 2013 में वॉशिंगटन डीसी में 8 फुट की और सरस्वती की सफेद मूर्ति खड़े, कमल के ऊपर खड़ी है, हंस भी है नीचे और हाथ में वीणा ली हुई, 8 फुट की खड़ी मूर्ति वॉशिंगटन डीसी में लगाई गई, स्थापित की गई, अमेरिका के अंदर सरस्वती की मूर्ति। और उसके नीचे लिखा है द एंशिएंट गॉडेस ऑफ लर्निंग, विद्या की देवी। आपको आश्चर्य होगा किसने वहां पर इंस्टॉल की? भारत ने नहीं, उस देश ने इंस्टॉल की जिस देश की आबादी का 98% मुस्लिम है। 98% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया ने अमेरिका को वो गिफ्ट दी। इंडोनेशिया के एम्बेसडर ने अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, उनका जो विदेश मंत्री होता है, उस विदेश मंत्री के साथ में उसका इनॉग्रेशन किया। रह गया, मैं कल रात को उसको लगा नहीं पाया स्लाइड में, वो देर हो गई थी इसलिए, नहीं तो मैं आपको वो मूर्ति दिखाता। जहां हिग्स बोसॉन की खोज चल रही है, उस सर्न के अंदर जहां पर पार्टिकल का वो जो प्रयोग चल रहा है, उस सर्न लेबोरेटरी के बाहर एक बहुत बड़ा नटराज की मूर्ति लगाई गई है। 2003 में लगाई गई, वहां पर अनिल काकोडकर गए थे, भारत ने दी वो। और उस मूर्ति को लगाते समय वहां जो इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हुआ, तब सर्न का डायरेक्टर जो एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर कहता है हमने ये मूर्ति इसलिए यहां पर लगवाई, भारत ने हमको डोनेट दी वो तो ठीक है, लेकिन ये इसलिए लगाई, this cosmic dance of Shiva is basically what defines the beginning of existence, creation. ये फिजिक्स का प्रोफेसर कह रहा है। हम लोग बात करते तो हमको लगता है ये धोती वाला तो ऐसी बातें करेगा, पुराणपंथी बातें करेगा। इसलिए हमारी खोपड़ी ऐसी बनी हुई है, इसलिए विदेशियों के बताने पड़ते हैं, एंगस मेडिसन के बताने पड़ते हैं। हम मानते ही तब है बातों को। स्वामी विवेकानंद को हमने तब स्वीकार किया जब शिकागो वालों ने तालियां बजाई। इतनी गुलामी हमारे अंदर, उससे पहले 6 साल भारत में दर दर भटकते रहे, किसी ने नहीं घास डाली। और जब वो शिकागो वालों ने तालियां बजा, यार ये कोई है यार ग्रेट, हार्वर्ड वाला कह रहा है, हार्वर्ड में जाकर के भाषण दिया और हार्वर्ड के प्रोफेसर कह रहे हैं इनके जैसा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं, तो भारत वालों की नींद खुले, इंटेलेक्चुअल है। इसलिए मैं वॉशिंगटन डीसी की सरस्वती बता रहा हूं, और एक मुस्लिम देश दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस देश में भारतीय संस्कृति के प्रचाप है। आज भी कुआलालंपुर यूनिवर्सिटी में सरस्वती की मूर्ति की पूजा होती है, मुस्लिम वाइस चांसलर पूजा करता है, भारत में नहीं कर सकते, सेक्युलर है ना। इंडोनेशिया में होता है, 98% मुस्लिम है उस देश में, वहां होता है। वहां की $20,000 की जो नोट है, भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है, मैं इस देश को छोड़कर के 45 वर्षों में कहीं नहीं गया, जाना भी नहीं। मेरे को कई बार लगता है कि भगवान ना करे कि 1 मिनट के लिए भी इस भारत माता से दूर होना पड़े, इसलिए मैं गया नहीं। लेकिन ये इंटरनेट से अच्छा है, सब पता चल जाता है। मेरे को कोई इंडोनेशिया से वापस आए तो उन्होंने कहा इंडोनेशिया की एक नोट के ऊपर गणेश जी की फोटो छपी हुई। मैंने कहा कौन सी नोट है? मैंने खोजा इंटरनेट पे, मिल गई वो नोट। वो गणेश जी की नोट $20,000 की नोट है,
वहां इंडोनेशिया में 1998 में जबरदस्त कन्वर्टेबिलिटी कारण उनका एकदम जबरदस्त उनकी करेंसी का डाउनफॉल हुआ और डॉलर के अगेंस्ट उसकी करेंसी बहुत खराब हो गई और $1 98,000, वहां की करेंसी का नाम रुपया है, प के ऊपर 2 मात्रा। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है, उस रुपया अचानक गिर गई, $1 को 98,000, इसलिए वो लोग कहते थे कि बोरी में भर करके पैसा ले जाते थे और एक ब्रेड खरीद करके लाते थे। ये स्थिति 1998 में अचानक हुई, जिस समय फिर वो मेघावती सुकार्णो पुत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उस कारण वो $20,000 की वो नोट है, आगे के 3 शून्य बोलना आजकल उन्होंने छोड़ दिया, वो 20 की कहते हैं, 20,000 रुपये की नोट है वो। उस नोट के ऊपर गणेश जी है। दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर भारत में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर अंकोर वाट में है, जो कंबोडिया के अंदर है। यूनेस्को ने जब 1988 में 88 में जब यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस का जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सारी दुनिया को कहा कि आपके यहाँ के एक ग्रंथ को नेशनल रिकॉग्निशन है, ऐसे ग्रंथ का नाम भेजिए। दुनिया के 18 देशों ने रामायण का नाम भेजा। उस 18 में भारत नहीं था, भारत सेक्युलर देश है। उस 18 देशों में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। इन्होंने कहा रामायण हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। आज भी उन देशों में रामायण खेली जाती है, मंचीय रूप से खेली जाती है, नियमित रूप से। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा एंगस मेडिसन का चार्ट बना रखा और गणेश जी की और शिव जी के मंदिर की, अंकोर वाट के मंदिर की क्यों बात कर रहा हूं। ये सारी संस्कृति वहां पर इन व्यापारियों ने पहुंचाई, ऋषियों ने नहीं पहुंचाई। कंबोडिया को कंबोडिया नाम देने वाला जो कंबू था, वो कंबू व्यापारी था, टेक्सटाइल का व्यापारी था। भारत से मलमल चीन में ले जाता था। एक बार जहाज खराब हुआ और गलती से वो उस द्वीप पर जिसका कोई नाम ही नहीं था, वो कंबू के वहां उतरने के कारण उसका नाम कंबू द्वीप पड़ा। वहां जो वनवासी रहते थे, उन वनवासियों को कपड़े क्या है देखे नहीं थे उन्होंने, और वहां महिलाओं का राज था। तो वहां की रानी जहर बुझे तीरों से जो भी आता था उनका स्वागत करती थी, और वहां की रानी और सारी वो महिलाओं की सेना और झाड़ियों के पीछे छुपी हुई। और जैसे कंबू उतरा, इसको सब लोगों ने कहा, खलासियों ने, कि जाना मत आगे, वो तो सीधे जहर बुझा तीर मारते, बातें कुछ करते नहीं। इसने अपने हाथ में सफेद मलमल का थान लिया, कपड़ा नीचे लहरा रहा था, और ये थान हाथ में लेकर के कंबू वहां पर गया सामने। वो रानी ने जहर बुझे तीर को नीचे रखा, उसको लगा कि इसके आंखों में जो प्रेम दिखा या जो भी अपनत्व दिखा, उसने अपने हाथ नीचे किए, मारा नहीं इसको। कंबू ने वहां के लोगों को कपड़े पहनना सिखाया, वहां के लोगों को संस्कृति सिखाई, इसलिए आज भी उसको कंबोडिया कहा जाता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिस समय पोलपाट का कम्युनिस्ट राज वहां पर खत्म हुआ, तो वहां का कम्युनिस्ट राज खत्म होते ही सबसे पहला काम वहां के लोगों ने कुछ किया होगा, तो रामायण का मंचन किया। कंबोडिया का रामायण में हनुमान सूत्रधार होता है। वहां एक ब्रिटिश पत्रकार बीबीसी की बैठी थी उस घटना के समय, ओपन थिएटर में बड़े से स्टेडियम के अंदर, और मंचन हो रहा है। कंबोडिया में हिंदू नहीं है, हिंदू 4% है केवल कंबोडिया में, बुद्ध है कुछ और बाकी सारे मुसलमान हो गए। उसके बावजूद हनुमान का रोल करने वाला मुसलमान है। वो मंच के उस पर ऐसे ऊपर से रस्सी से टंगा हुआ एंट्री करता है। वही सालों से वही हो रहा है कंबोडिया में। लेकिन पोलपाट के राज में, पोलपाट वहां का तानाशाह था, कम्युनिस्ट तानाशाह था, जिसने 18-20 वर्षों में सारे कलाकारों को मार दिया, संस्कृति को खत्म कर दिया। धर्म को नहीं मानते ना वो, हनुमान कुछ नहीं, रामायण कुछ नहीं, खत्म कर दिया। स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहला एक्सप्रेशन कुछ किया होगा तो रामायण का मंचन किया कंबोडिया में। वो बीबीसी के पत्रकार लिखती है, जैसे हनुमान की एंट्री हुई, सारा का सारा स्टेडियम एक साथ रो रहा था, सबके आंखों में से आंसू थे। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों रो रहे। सबने हमको कहा, उन लोगों ने, आसपास बैठे हुए लोगों ने उस महिला पत्रकार को, बीबीसी पत्रकार को बताया कि ये हनुमान का उस मंच पर आना हमारी सच्ची स्वतंत्रता है, और ये हमारे व्यापारियों ने दिया था। मैं जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में था दिल्ली में, तब हमारा एक रिसर्चर जापान गया था। जापान के साथ भारत के सिक्योरिटी को लेकर के बहुत अच्छे संबंध हमने डेवलप करने की कोशिश की। वहां के थिंक टैंक के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, क्योंकि चाइना को वो भी थ्रेट मानते हैं, हम भी थ्रेट मानते हैं, इसलिए जापान के बहुत करीब हो सकते हैं, खास करके चाइनीज स्टडीज के लिए। हमारा एक रिसर्चर गया, जेएनयू से हमने रिक्रूट किया था वीआईएफ में। वो रिसर्चर वहां पर जब गया, वापस आया, वापस आने के बाद वो अपनी जापान विजिट की रिपोर्ट कर रहा था। सेना के अनेक ऑफिसर सामने बैठे थे, रिटायर्ड और वर्किंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे, रॉ के थे,
फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे, प्रधानमंत्री कार्यालय के भी 2 सेक्रेटरी आकर के बैठे थे, और वो जापान में जो कुछ भी हुआ उसकी बात बता रहा था। मैं उस सारी बातों को नहीं बताने के लिए यहां पर ये विषय निकाला, उसको बताते बताते उसने एक वाक्य बोला। वो कहता है जापानीज भाषा में एक कहावत है, हिंदू नेवर टेल्स ए लाई, हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता। सामने बैठे वाले सब लोग हंस रहे थे, सेना के अधिकारी वगैरह, अरे क्या मजाक है। पर यह साख हमारे व्यापारियों ने खड़ी की। सदियों से जापान में जाते हुए हमारे व्यापारियों ने हिंदू के बारे में जापान का इंप्रेशन बनाया। मर जाता था पिताजी, पिताजी के मर जाने के बाद बेटा जाकर के कहता था, पिताजी बता के गए कि इतनी की उधारी बाकी है, ये तुम्हारी उधारी वापस लो। सामने वाला देखता रहता था, तू नहीं आता समुद्र पार तो मैं क्या बिगाड़ लेता तेरा। लेकिन वो आदमी कहता था, नहीं, मेरे पिताजी मरते समय सिर पर का जो कर्ज था वो मुझे बता करके देखे, कर्ज मेरे सिर पे लेकर के नहीं जी सकता मैं। ये धर्माधारित अर्थव्यवस्था थी जिसने एंगस मेडिसन को बताने पर मजबूर किया कि भारत हजारों हजार वर्षों से 2000 वर्ष तक दुनिया का वर्ल्ड लीडर रहा है व्यापार में। वो है सस्टेनेबल मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, सस्टेनेबल मॉडल ऑफ, क्योंकि सस्टेनेबल का हिंदी में अनुवाद क्या है? हम लोगों को बड़े मजेदार होता है, हम हमारे शब्दों का अंग्रेजी करते हैं और फिर उनका वापस अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करते समय बहुत मजेदार गलतियां करते हैं। तो हमने जब ये पिछला जो डिकेड है 2014 तक का, 2004 से 2014, ये डिकेड को यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है डिकेड फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमको भारतीय शिक्षण मंडल में काम लेना था, तो हमारे विद्वानों ने उसका अनुवाद करके लिख दिया, जो है जो नॉर्मल जो अनुवाद उपलब्ध है। उन्होंने कहा यूएनओ का ये डिकेड है वो क्या है? शिक्षा। किसके लिए शिक्षा? एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूएन का दिया हुआ नाम है। हिंदी में करते समय हम लोगों ने उसका नाम किया धारणक्षम विकास के लिए शिक्षा। धारणक्षम गलत नहीं है, इट्स अ राइट ट्रांसलेशन। सस्टेनेबल, अ डेवलपमेंट विच इज एबल टू सस्टेन, जो धारण करने में सक्षम है। अरे पर इसके लिए दूसरा शब्द देने की जरूरत क्या है? धारण करने के लिए जो सक्षम है उसी को तो धर्म कहते हैं। धारणात् धर्म इत्येयु धर्मो धारयति प्रजा, यह महाभारत में धर्म की परिभाषा है। जो समाज को, जो सृष्टि को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। एक दूसरा अनुवाद है जिसने गड़बड़ी की है। आज अनुवाद की बहुत सारी गड़बड़ियां मैं बताना चाहता हूं। मैंने मॉडर्नाइजेशन के अनुवाद की गड़बड़ी बताई। मॉडर्न का अर्थ क्या है? मॉडर्न नीड नॉट बी एडवांस्ड। वैसे धर्म के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। मॉडर्न नीड नॉट बी एडवांस के लिए मैंने 1-2 उदाहरण आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके आगे का पहले दिखा देते हैं, फिर इसको दिखाएंगे। पिछले साल बहुत बड़ा प्रलय आया केदारनाथ में, हमने देखा था। मैं उसके बाद में भारत के कम से कम 20-25 यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े आर्किटेक्चर साइंस के लोगों के सामने ये चुनौती छोड़ करके आया हूं। आपने टीवी के ऊपर आरसीसी के मकानों को ताश के पत्तों की तरह मंदाकिनी में बहते हुए देखा है। गंगा जी के रौद्र रूप के अंदर आरसीसी के आधुनिक मकान ढह गए, और ये 1200 साल पुराना बाबा केदारनाथ छाती ताने खड़ा हुआ है। विल कम टू इट व्हाई। ऐसे ही दृश्य नेक्स्ट, ऐसे ही दृश्य सुनामी के समय देखे थे। मैं खुद गया हूं वहां पर, नागपट्टनम में, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। उस समय में विवेकानंद केंद्र का काम करता था। हमने बहुत सेवा कार्य करे सुनामी से पीड़ित लोगों के बीच में, और आश्चर्य होता था, पूरा गांव तहस नहस हो गया, मंदिर बना हुआ है। थोड़ा सा कुछ क्षति हुई नहीं हुई ऐसा नहीं, अनेक जगह। महाबलीपुरम में तो 5 नए मंदिर बाहर आ गए जो रेत के अंदर डूबे हुए थे सुनामी के बाद में, गिरे नहीं। बाकी आसपास के सारे आधुनिक मकान गिर गए। माय क्वेश्चन इज, can you say that modern is advanced? You have to question that at the technological level. मैं आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को कह रहा हूं, जाकर के केदारनाथ की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की स्टडी तो करो। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, और मैं इसमें कोई ईश्वर की कृपा नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप में से किसी को यह लग रहा हो कि यह फोटो मैंने इसलिए दिखाया कि भगवान की कृपा से बची, भगवान की केवल इतनी कृपा थी कि इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनको सही टेक्नोलॉजी आती थी, इतनी भगवान की कृपा है उसमें।
ये नागपट्टनम का सुनामी के समय भगवान की इतनी कृपा थी, बाकी कोई भगवान की कृपा नहीं इसमें। इट्स प्योर साइंस। ये टेक्नोलॉजी क्या थी उसको देखने के लिए वो पीछे वाली स्लाइड पे आते जो अखंड मंडल वाली। चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे व्यापार हो, हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता वाला व्यापार, ऐसी साख निर्माण करने वाला व्यापार, एंगस मेडिसन की साख निर्माण करने वाला व्यापार, उसके पीछे का जीवन जीने का सिद्धांत ये था। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन थ्योरी ये है। भारत में धर्म ये, धर्म का ये अर्थ है, रिलीजन नहीं, उपासना का कोई लेना देना नहीं। सारे जीवन को एकात्म दृष्टि से देखना यह भारत है, यह भारतीय जीवन दृष्टि है, यह भारतीय धर्म है, यह भारतीय विचार है। इसलिए मैंने, और यह आज भी जीवित है, आज भी हमारे गांवों में जीवित है, हमारे शहरों में जीवित है, हम सबके अंदर जीवित है। यह सारा बात मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूं, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल। मैं इसके लिए 50 मंत्र बता सकता हूं उपनिषदों में से, लेकिन मैं मंत्र बताऊंगा नहीं, मैं आपके अनुभव की बातें बता सकता हूं, क्योंकि आपके जीवन में यह धर्म है। जैसे न्यूटन बताए या भारद्वाज बताए या बख्शी सर बताए, इरेजर उठा करके मेरे को पता चले, गुरुत्वाकर्षण तो काम करेगा ही ना, किसने बताया इससे फर्क पड़ेगा क्या? दिस इज लाइक दैट, प्योर साइंस। किसने बताया इसकी जरूरत नहीं है। हम मंत्र में बोलते हैं, गुरु की प्रार्थना में बोलते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमको ये अखंड मंडल की दृष्टि प्रदान करता है उस गुरु को मैं नमन करता हूं। अखंड मंडल, जो मंडल कभी खंडित नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। दिस इज हाउ वी लुक एट लाइफ, दिस इज हाउ लाइफ इज, नॉट वी लुक एट इट। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल, ये जो सारा है, अभी जो अमेरिका की इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में हम सुन रहे थे गुरुमूर्ति जी के लिए, व्हाई डिड थिंग्स कोलैप्स? इंडिविजुअलिज्म के बढ़ने से और सोसाइटी क्यों कोलैप्स हुई? ये जो सारा जो पतन यहां पर दिखाया, ये हुआ क्यों? इसका कारण हमको यहां पर से पता चलता है कि समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण एग्जिस्टेंस का आधार है। मैं परिवार में विकसित होता हूं, परिवार समाज में विकसित होता है, मन की यह गति है। इसलिए मनुष्य को सोशल एनिमल का, वो अकेले नहीं रह सकता, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। वो अपने आप को विस्तारित करता है परिवार के रूप में। मेरा मैं विकसित होता है परिवार के रूप में। मेरे लिए परिवार अलग नहीं है, मेरे लिए परिवार मैं ही हूं। मैं एक उदाहरण अपने जीवन का बताता हूं, आपको अपने जीवन के 50 उदाहरण याद आ जाएंगे।